अगर आप कैट का DLR सेक्शन देखोगे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, बिकॉज इसमें इधर यू विल स्कोर वेरी गुड परसेंटाइल या फिर बहुत ख़राब हो जाता है। एंड यू नो गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है उनका DLR सेक्शन ही नहीं हो पाता है। बिकॉज अगर आप एग्जाम सिनारियो में एक भी सेट सॉल्व कर लिए देन यू आर गुड टू गो फॉर अराउंड 80 to 90 परसेंटाइल इन DLR सेक्शन। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉलेज का कट ऑफ क्लियर हो जाता है 80 to 90 परसेंटाइल अगर आपको आ गया DLR सेक्शन में तो। बट यू नो इसमें भी नहीं हो पाता है। सो टुडे विथ अस इज मानसी अग्रवाल। सी scored 99.65 percentile in DLR and scored around 32 marks. She will be going to tell us how she scored 99.65 percentile in DLR, what was her strategy for DLR, and if you guys have any more doubt regarding DLR section, you can directly connect with the Mansi Agarwal. I will put the LinkedIn link in the description box. You can connect over there. And also I am planning to take a live session on this Sunday, so if you guys interested, do join the WhatsApp link. I will put the WhatsApp link is in description box. And also if you guys have any a specific doubt, you can directly connect me over LinkedIn or Instagram, and you can ask your doubt over there. So now let's start with the video. Hi Mansi, how are you? Hi, Sushant. I'm great. Yeah, so shall we start? Yeah, sure. Okay, so could you tell me about yourself? I mean, the brief introduction of yourself, so that ki jo viewers hain they get to know about your profile, your background, and all those things. Basic brief mein like. Yeah, sure. So, hi everyone. I'm Ansi Agrawal. I have done my graduation from Kalindi College, Delhi University, and it was from biology field, that is to off field for MBA. And post my graduation, I have done digital marketing, and I'm a digital marketer freelancer as well. So yeah, that's all about my background. And post this, I joined I am Rota. So yeah, today I'm here. That's all about my background. Mansi, could you tell me about your DLR percentile especially? So my DLR percentile was 99.65, wherein I scored almost 32 marks in DLI section particularly. Okay, so Mansi, like as you scored 99.65 percentile in DLR, so like if someone is thinking about to appearing for the CAT, and उनको like DLR section कैसे approach करना चाहिए, basically how you approach a DLR section like from a start to end, आपने क्या strategy follow की, and did you have joined any coaching institute and all those things? So particularly what I believe is DLR section can make or break the exam. DLR section ऐसा है यार, like in most of the cases it is seen कि या तो बहुत अच्छा जाता है या फिर बहुत बेकार जाता है. Usually cases में ऐसे ही होता है. Like either you score 40-60 percentile or either you score 90 plus percentile. So what I believe is कि जिसका basics clear हो, he or she can excel in the DLR section. ठीक है. And how do you choose the questions, how do you choose the sets, and how do you proceed to solve the sets, considering the time constraints. This is something which is most important whenever you are approaching towards the DILR section. So yeah, my strategy was to practice as much as I can, considering time. एंड मैं क्या करती थी, जैसे सपोज प्रैक्टिस के टाइम पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इट हैज 5 क्वेश्चंस. I used to set a time limit, certain time limits, for example 10 minutes for that set. And मैं उसमें अपने आप को ग्रेड करती थी. Like among suppose 5 questions में मेरे 4 questions सही हो रहे हैं and 1 is incorrect. Like 4 into 3, 12, and then minus 1 for the negative marking. So I scored 11 on 15 or for that set. So this is how I used to mark myself. तो उससे मतलब पता चल रहा था कि लाइक मेरा लेवल क्या है. एंड वेरियस टाइप ऑफ सेट्स अलग अलग टॉपिक के प्रैक्टिस करते रहो. दैट्स समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट. सो इनिशियल में जब आपने DLR का प्रिपरेशन स्टार्ट की तो डिड यू फॉलो एनी सॉर्ट्स ऑफ लाइक फर्स्ट मैं ये पार्टिकुलर टॉपिक कर लेता हूँ, देन फिर लेटर ऑन आई मूव टू द मिक्स काइंड्स ऑफ सेट. फॉर एग्जांपल मतलब मेरा ये स्ट्रेटजी था कि इनिशियली आई कंप्लीटेड ऑल द बेसिक टॉपिक लाइक लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, मिक्स मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गए, ट्रूथ एंड लाई हो गया, और भी जितने भी सेट थ्योरी और भी जो टॉपिक है. देन उसके बाद आई मूव टू द मिक्स काइंड्स ऑफ सेट.
तो आपने भी सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो की या फिर कुछ और डिफरेंट स्ट्रेटजी थी? Yeah, it was almost similar, like starting off with very basic question हम्म, arrangements, फिर उसके बाद like Venn diagrams, then coming off to caselets, then to um, difficult questions like games and ornaments and etc. So yeah, that was the pace itself, easier to difficult. But I was keeping on practicing because होता है बहुत बार questions mix करके आते हैं. राइट। Caselets में ही वो लोग games and tournaments घुमा देते हैं. तो हम्म। like you have to keep practicing each and every question क्योंकि वो लोग मिक्स करके भी देते हैं. या एक्चुअली कैट का ये पैटर्न नहीं हो गया, लाइक वो स्पेसिफिक कोई पार्टिकुलर टॉपिक से आप सेट तो नहीं देते हैं। कोई पार्टी नहीं लाइक देते यहाँ भी हैं. हाँ, मतलब अगर एग्जैक्टली. 4 to 5 years का आप ट्रेंड देखो तो इसलिए अपने आप को प्रिपरेशन का सेव कर वैसे करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो मानसी, एज यू मेंशन कि लाइक अपने आप को आपने टाइम लिमिट सेट कर देते हो फॉर एग्जाम्पल सेट के लिए। सो अगर मान लो कि मतलब ऐसे मुझे बहुत लोगों के डाउट आते हैं कि आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इन 10 minutes, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं एक्चुअली व्हाट आई फॉलोड कि लाइक मैं सेट को ट्राई करता था अनलेस और अनटिल जब तक मैं पूरा थक ना जाऊं। मैं उसमें या 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, उतना देर तक मैं ट्राई करता था अपने आप को कि लाइक कहीं तो कुछ क्लिक हो, कहीं तो कुछ क्लिक हो। तो ये सिमिलर स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ एस्पिरेंट को कि अगर इन केस आपका अगर सेट नहीं सॉल्व हो रहा है तब आप इस सिचुएशन में क्या करती थी? हाँ, तो मेरा भी ऐसा कुछ था कि लाइक ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग, तो मतलब मैं इनिशियली मैंने ऐसे तैयार किया था कि एक क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना ही है एनी हाउ. आई रिमेम्बर कि जब मैं सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, देयर वाज अ केसलेट इन अरुण शर्मा बुक ओके। जिसको लाइक आई ट्राइड 4 times एंड एवरी टाइम आई टुक 1 hour टू सॉल्व इट. एंड वो फोर्थ टाइम में जाके सॉल्व हुआ लाइक. तो मतलब मुझे पर्टिकुलरली दैट सेट के लिए इट टुक मी 4 hour. तो इनिशियल फोकस शुड बी योर लाइक सॉल्विंग पावर एंड योर एक्यूरेसी. इनिशियली तुम्हारा टाइम कांस्टेंट नहीं आ सकता है. टाइम राइट। कांस्टेंट इज समथिंग जो थोड़ा बाद में आएगा. करेक्ट। इनिशियली यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि तुम्हारा सॉल्व हो, तुम्हारा थोड़ा ब्रेन फंक्शन करे उस डायरेक्शन में. होता है हम्म। ना कि मतलब तुम्हें सब पॉसिबल स्ट्रैटाज लेके चलने होता है. तो इनिशियली वो सब चीजें देखो एंड देन एक्यूरेसी पे वर्क करो. लाइक इफ यू आर अटेम्प्टिंग 5 questions, मेक श्योर कि ऑल दोस 5 आर करेक्ट. एग्जैक्टली। डीआईएलआर में समहाउ पता चल जाता है कि हाँ मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ राइट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के हिसाब से. हाँ। तो तो इनिशियली क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. या टाइम भले मैं ही लग जाए. मेरा भी सेम लॉजिक लाइक मैं फॉलो करता था और हाँ. वही मैं एस्पिरेंट को बोलता हूँ कि लाइक इनिशियल स्टेज में लाइक योर मोटो शुड बी टू सॉल्व अ सेट। टाइम कंस्ट्रेंट नहीं देखना है, बेसिकली आपका लॉजिक डेवलप होना चाहिए। बिकॉज आई फील कि डीएलआर इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड सेंस। बहुत कुछ ज़्यादा हम्म. स्पेसिफिक पार्टिकुलर से टॉपिक से तो आ नहीं रहे हैं डीएलआर आजकल। ओके। सो या. या गुड आई मीन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आपने सेक्शनल मॉक्स तो दिए ही होंगे, तो उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी था मॉक और सेक्शनल का? दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स कि बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मैं इजी सेट है ना वो पिक नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो मेरे से इजी सेट जो है वो मैं मॉक के टाइम या सेक्शनल के टाइम में पिक नहीं किया, और लेटर ऑन ड्यूरिंग एनालिसिस टाइम आई फाउंड कि लाइक ये सेट इजी था। तो उसको आप कैसे टैकल किया? ओके. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट मॉक्स एंड सेक्शनल्स, तो मेरा अप्रोच ये रहता था कि लाइक आई यूज्ड टू हैड दैट टॉपिक वाइज सेक्शनल्स एज वेल, कि टॉपिक के हिसाब से वेन डायग्राम का सेक्शनल ऐसे से. तो इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि प्रैक्टिस वन टॉपिक, लर्न न्यू टॉपिक एंड देन प्रैक्टिस sectionals for particular sections for all the topics what I have learned. ठीक है. एंड देन आई go towards the full length mocks. ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी टू चूज द सेट्स, तो उसमें ना क्या होता है, इनिशियली तुम्हें all 4 sets तुम्हें रीड करना है. यूजुअली देयर आर 4 sets, you have to go through all the 4 sets there. ठीक है. एंड देन लाइक विद इन it should be within like 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes में you have to skim all the 4 sets and then you have to conceptualize कि कौन सा हो सकता है. ठीक है. लाइक इसमें बहुत दिक्कत आती है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन, तभी होगा वो. राइट। इनिशियली ऐसे बहुत बार होता है कि तुम रैट ट्रैप में फंस जाते हो. क्वेश्चन दैट लुक्स इजियर इज नॉट एक्चुअली इजियर.
इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। तुम्हें तुम्हें तब तुम सॉल्व करने लगते हो, तुम्हें तब पता चलता है दैट्स अ रैट ट्रैप। क्वेश्चन दिख रहा था इजी, पर वो नहीं है। राइट। तो मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट कि कैसे चूज करना होता है। बट यस, इतना है कि तुम इनिशियली 7 to 8 मिनट्स में या जस्ट गो थ्रू ऑल दी सेट्स, एंड फिर मे बी तुम्हारा जो कंफर्टेबल टॉपिक है तुम उसको टारगेट कर सकते हो। बट दैट्स द नॉट द ओनली पैरामीटर। हो सकता है कि तुम्हें वेन डायग्राम इजी लगता हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पेपर में वेन डायग्राम सबसे मुश्किल आया हो, राइट। वो भी हो सकता है। तो तुम एक ऐसे पर्टिकुलर माइंडसेट लेके नहीं चल सकते, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस कि कौन सा तुम्हें चूज करना है। दैट्स द ओनली की। One more thing, इसी mocks related, like what I followed, like I used to scheme a set as well as questions. Like एक particular set हुआ, उसको scheme किया, then उसके questions भी scheme किए, because most of the time what happen कि set seems like easy, but questions में वो if करके आता है, like for a individual question you have to again solve the set, उसमें कुछ additional data and ये चीज़ें रहती है। तो I mean, did you scheme like both questions or set or only set? Initially, the very first read I used to go through sets particularly, क्योंकि अगर set ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा, you won't be able to cater to questions। Right. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सेट थोड़ा सॉल्वेबल है, like if there are two sets and you think those two are doable and you have to choose one among them, तो तुम क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दिया होता है, एंड लाइक भले ही तुम्हें सॉल्व ना करना पड़े, एंड जस्ट तुम्हें थोड़ा बहुत देख कर ही तुम्हें पता चल जाता है कि दैट्स द आंसर। एंड होता है यूजुअली वो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड भी नहीं होता है, वो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन होता है जिसका आंसर डायरेक्टली होता है, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली मिल जाता है। तो ये सब भी होता है। Yes, तो I feel फर्स्ट sometimes, सेट्स देन दी क्वेश्चंस। sometimes questions भी हेल्प करते हैं सेट को सॉल्व करने में। लाइक हाँ मैं जब हाँ, कैट दे मैं रहा था तो आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द सेट, बट वो क्वेश्चन देख कर प्लस माइनस करके लाइक आई वाज एबल टू सॉल्व द सेट। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हाँ हैं, हाँ, यू शुड ऑल्सो I लुक did एट too। द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के ऑप्शन, लाइक व्हाट ऑल द ऑप्शंस फिट इनटू द सेट्स एंड ऑल। सो मानसी, इसमें एक और लेवल ऑफ डाउट आता है लोगों का कि लाइक फॉर एग्जांपल कितने लोग रहते हैं जो ठीक हैं डीएलआर में, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 2 सेट इन मॉक सिनारियो। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक अगर कोई किसी को 99 लाना है, देन दे हैव टू मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 3 सेट इन एग्जाम, एंड 2 लोग पे मैक्सिमम लोग स्टक हो जाते हैं। तो लाइक इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है? Like if they're getting stuck after 2 sets, तो maybe time constraint is the issue, कि तुम 2 sets के बाद आगे proceed करने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा है। तो in that case you have to increase your speed to solve the questions। So मतलब मेरा कैट के टाइम पे ऐसा हुआ था कि one of the set was particularly very easy, एंड लोगों को समझने में कि ये सेट इजी है उसमें ही टाइम लग गया, एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सेट इन जस्ट 5 इन द इनिशियल 5 to 6 minutes। लाइक जब Okay. लोग रीड कर रहे होते हैं सेट्स, आई सॉल्व्ड वन सेट एंटायरली। सो हाँ, तो दैट्स द इशू ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोसीड जस्ट आफ्टर 2 sets। तो तुम्हें मतलब मैं जैसे ही वो सेट स्किम कर रही थी, आई फेल्ट इट वेरी इजी, मैंने उसको फर्स्ट को मैं ही मैंने सॉल्व करना ही शुरू कर दिया। आई डिडंट प्रोसीड टू अदर सेट्स। Okay. तो उसको फर्स्ट सॉल्व कर दिया, एंड विद इन 20 minutes माय 2 sets वर सॉल्व। रेस्ट 20 minutes आई स्पेंड ऑन जस्ट वन सेट। Yeah, so this is one of the strategy you guys can follow, like अगर कोई इजी सेट आ रहा है इन मॉक सिनेरियो में या फिर फाइनल कैट में, स्टेट वे उसको सॉल्व कर दो, बाद का सेट हम बाद में देखेंगे। बिकॉज एक सेट भी अगर आपने सॉल्व कर दिया, 4 क्वेश्चन है, 4 into 3 12, देन यू आर गुड टू गो अबाउट आई थिंक 85-90 परसेंटाइल आ जाएगा उसमें। एग्जैक्टली। So Mansi, one last question, like the cat is very close, like I think 40 days है I think cat के लिए अब। 40 days, So yeah। yeah, so in last 40 days में और 1.5 month में आपका क्या strategy था particularly for the DILR section? So talking about my last 40 day strategy, इस time तक I had solved like entire Arun Sharma books. The Arun Sharma books was
समथिंग आई वाज रेफरिंग टू। तो मैंने Okay. DI एंड LR दोनों बुक्स पूरे सॉल्व किए थे। तो आई वाज श्योर ऑफ माय बेसिक्स टिल नाउ। तो इसके बाद मेरा मोटिव था कि मैं मॉक्स पे एंड सेक्शंस पे ध्यान दूं। ठीक है। मैं इस टाइम पे वर्क कर रही थी अपनी एक्यूरेसी पे एंड स्पीड पे। मतलब बहुत बार ऐसे होता था कि जैसे बाकी एस्पिरेंट्स को भी होता है कि मॉक में क्वेश्चन थोड़ा इजी लगता है, थोड़ा केटर करना इजी नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ Right. एंजाइटी एंड प्रेशर। Mm-hmm. तो मेरा फोकस ये था कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं पेपर में जा रही हूँ, एग्जाम लिखने बैठी हूँ एंड मैं ब्लैंक हो जाऊँ, भले ही मुझे आता हो। तो दैट वाज माय मोटिव टू प्रैक्टिस सो मच कि मैं एग्जाम से बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ। Hmm. सो एग्जैक्टली टाइम को ध्यान रखते हुए, मेरी एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए एंड मेरी एंजाइटी प्रेशर को ध्यान रखते हुए, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन, like Okay. sections and mocks a lot. तो टोटल Like आपने every कितने, alternate day I used to give full time mock. एवरी अल्टरनेट डेज, तो टोटल आपने कितने Everyone, टोटल like मॉक्स दिए two थे? to 3 days in a week. हम्म. I don't know the exact number. Initially, I used to give like once in a week or once in 15 days. But हम्म. जैसे जैसे CAT पास आया, like just अभी है जैसे 40 days are left. हम्म. So I was giving mock like every alternate day, like at least ओके. 3 times in a week. हम्म. पहले उसको मॉक देती थी दिन में फुल टाइम मॉक, एंड लाइक मॉक भले ही 2 घंटे का है, उसको एनालाइज करने में लाइक 4 to 5 hours लग जाते हैं। राइट. ठीक है। तो लाइक दिन में पहले 2 घंटे का मॉक दो, फिर शाम को 4 to 5 hours उसका एनालाइज करो, और कुछ हम्म. नहीं करना है, जस्ट 4 to 5 एनालाइज उसको। फिर नेक्स्ट डे जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं और जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें आते हैं पर तुमने उस पर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी, उस पर राइट. ध्यान दो। फिर नेक्स्ट डे अनदर मॉक। So that was something I was going through the flow in last 40 days. हम्म. वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ Mhm. कि लाइक बहुत लोगों का ये रहता है कि मुझे DILR रिवीजन करना चाहिए नहीं, बिकॉज इसमें समझ में नहीं आता एस्पिरेंट को कि क्या रिवीजन करूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पार्टिकुलरली रिवाइज किया था सेट स्पेशली, बट वो सॉल्व करके नहीं, आई यूज टू रीड द सेट, स्कीम द सेट एंड जस्ट वो माइंड मैपिंग कि लाइक हाउ आई सॉल्व दिस सेट और हाउ आई विल एबल टू सॉल्व दिस सेट, बेसिकली माइंड मैपिंग, नॉट एंड दिस थिंग. सो डिड यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और कि रिवीजन का कोई पार्ट नहीं था DILR में आपके लिए? मैंने ऐसे प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं था या ऐसे कुछ होता नहीं है इसमें, राइट. हाँ. एंड आई डिडंट गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल जो मैंने सॉल्व कर लिए। तो बस ये था कि जहाँ पर भी मुझे नए क्वेश्चंस मिल रहे थे, हम्म. भले ही वो सिमिलर हो बट क्वेश्चंस नए हो, जहाँ हम्म. पे भी मुझे नए क्वेश्चंस मिल रहे थे मैं आई वाज रेफरिंग टू देम, क्योंकि क्वेश्चंस हमें बहुत मिल जाते हैं। बहुत इंटरनेट सोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सेक्शंस मॉक्स में भी इतने सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो राइट. लाइक आई वाज रेफरिंग टू न्यू क्वेश्चंस। आई डिडंट गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। ओके. सो मतलब ये कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि लाइक DILR रिवीजन करना हाँ, चाहिए लाइक नहीं. दिस हाँ. वैरीज पर्सन टू पर्सन, मे बी हम्म. लोगों को माइंड मैपिंग से इजीली ग्रैब होता होगा, हाँ. किसी को प्रैक्टिस से इजीली ग्रैब होता है। तो दिस वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। राइट. तो फॉर मी इट वाज कि मैं जितना प्रैक्टिस करूं इट वुड स्टे इन माय माइंड, तो दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिस अ लॉट। ओके. सो थैंक यू मानसी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. होपफुली थैंक यू वेरी मच। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ इंसाइट्स मिला हो, लाइक कैसे उनको DILR अप्रोच करना चाहिए, लाइक US scored 99.6 percentile. So they able to follow your strategy and able to score, you know, around 99 or more than Oh 99. yeah. Yeah. So Yeah. thank you, and bye bye. Thank you very much, Shant.